HTML to create web pages. Okay. In the last class, we had learned the structure of HTML web page. Okay. We had learned the 4 structural tags. That was HTML. Every tag is given within the angular brackets. Okay. Every tag is given within the angular brackets. How many types of tags are there? 2 types of tags. कौन से? Container tags and empty tags. Correct. Container tags will have both opening and closing tags, and empty tags will have only opening tag. And please everyone take out your rough notebook, classwork notebook. कोई होगी? मैंने और भी तो करवाना है काम, पुराना सिर्फ रिवाइज नहीं करवाना, और भी तो लिखवाना है. टेक आउट योर रफ नोटबुक्स एंड बेटा माइंड इट, कोशिश करो कि अपने कंप्यूटर के लिए जो क्लास वर्क नोटबुक है इट शुड बी सेपरेट. ठीक है, इट विल बी इजी फॉर यू टू लेटर ऑन रिवाइज द टॉपिक्स. बाकी टॉपिक साइंस मैथ के साथ मिक्स नहीं होंगे. अगर अलग से रफ नोटबुक लगी होगी तो HTML के कोड्स और HTML के नोट्स जो हैं दैट विल बी सेपरेट फॉर यू फॉर रिवाइजिंग. चाहे एक ही कॉपी है तो उसमें पार्टीशन कर लो कि डेट वाइज आपके नोट्स इकट्ठे एक ही जगह पे होने चाहिए. Clear? Okay. Then we had done empty tag which will have only the opening tag. ठीक है? By default structure for the HTML tag was first of all HTML. After that head. We are having the head tag. Head tag के अंदर we were having title tag. Then we will write the title of the web page. Where the title will be displayed? Where the title will be displayed? This text which we give between the opening and closing tag of title tag, that text will be displayed where? On the title bar, taskbar, on the title bar of web browser. On the title bar of web browser. Okay. After that, we will close head tag, and then we will start with body tag. And whatever text or matter we write in the body tag, that will be displayed as a content of web page on the web browser page. Okay, that will be displayed in web browser. And right last may we will close HTML. Okay. Now in HTML we are having 2 sections. One is header section and second is body section. Clear? This is the head section, this is the body section, and we are using one tag between other tag. HTML tag शुरू किया, खत्म करने से पहले हमने head tag start कर दिया, उसको finish करने से पहले हमने title tag start कर दिया. We are using the tags within another tags. ठीक है, whenever we are using the tags within another tags, they are called nested tags. They are called nested tags. But they are called nested tags. ठीक है, nest कर रहे हैं. Then when we use the multiple tags within another tags, closing tags should be in reverse order. Closing tags should be in reverse order. Like अभी मैंने HTML स्टार्ट किया बिगनिंग में, खत्म कहाँ किया? लास्ट में. Then I had started head tag, then I started title tag. Now मेरा टाइटल फिनिश हो गया, टाइटल के अंदर मुझे कुछ और यूज नहीं करना है. Then I close the title tag. ठीक है. After that मेरा हेडर सेक्शन खत्म हो गया, then I close the head tag. ये नहीं कर सकते कि टाइटल टैग यहाँ फिनिश कर दे, हेड टैग यहाँ फिनिश कर दे, फिर टाइटल स्टार्ट करे. यहाँ टाइटल स्टार्ट करने के बाद पहले हेड टैग फिनिश करे फिर टाइटल फिनिश करे, ऐसा नहीं होगा. रिवर्स ऑर्डर. टाइटल टैग हेड टैग के बाद ओपन हुआ है, तो टाइटल टैग पहले बंद होगा. ठीक है. देन हेड टैग पहले स्टार्ट हुआ टाइटल से, तो टाइटल के बाद बंद होगा. रिवर्स ऑर्डर में. ठीक है. क्लोजिंग टैग विल ऑलवेज हैव अ फॉरवर्ड स्लैश. दिस द फॉरवर्ड स्लैश. ठीक है. क्लियर है? After that head section is finished, we started with the body section. Body section we will write all the text that we want to display on the web page of browser.
कि ब्राउजर में गूगल क्रोम ओपन करूं या इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करूं तो मेरी फाइल में क्या डिस्प्ले होना चाहिए, दैट टेक्स्ट इज डिस्प्लेड, दैट टेक्स्ट इज टाइप्ड इन द बॉडी टैग. ठीक है, क्लियर है. आफ्टर दैट बॉडी सेक्शन इज फिनिश्ड, आई क्लोज द बॉडी टैग एंड लास्ट में आई एम गोइंग टू फिनिश द HTML टैग. क्लियर है स्ट्रक्चर सबको? एनी डाउट ऑनलाइन क्लास? एनी डाउट? बेटा जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज ज्वाइन योर क्लास ऑन टाइम. Okay, now we are going to learn about the meaning of each and every tag. What is the use of HTML tag? HTML tag is always used at the beginning of the HTML document to mark the beginning of the document as well as to tell the browser that this is an HTML document, this is a web page, not a simple text file. ठीक है, वेब ब्राउजर को आइडेंटिफाई करना है कि ये कोई सिंपल टेक्स्ट फाइल है या कोई वेब पेज है. ठीक है, अगर वेब पेज है तो इट विल ओपन इन वेब ब्राउजर प्रॉपर्ली. ठीक है, टू आइडेंटिफाई द वेब पेज, टू इंडिकेट टू द ब्राउजर दैट इट इज अ वेब पेज. And it also marks the beginning of HTML document. It also marks the beginning of HTML document. To indicate to the browser that it is a web page, and it also marks the beginning of a web page. Okay, next is your head tag. मैं इधर ही लिख रही हूँ बिकॉज कैमरा में ये आ नहीं रहा उधर का क्वेश्चन. नेक्स्ट इज योर हेड टैग. हेड टैग क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द हेडर सेक्शन ऑफ द ब्राउजर. इट विल हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द browser like the title of the web page, description about the web browser. Whatever we write in the head tag that is not displayed on the web browser. पहली बात वो ब्राउजर के अंदर कुछ भी उसका डिस्प्ले नहीं होगा. वेब पेज के ऊपर उसकी अपीयरेंस का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. देयर आर मेनी टैग्स यूज्ड इन हेड टैग बट प्रेजेंटली वी आर डूइंग ओनली वन टैग दैट इज टाइटल टैग. ठीक है, और भी टैग्स और इंफॉर्मेशन हम हेड टैग में यूज करते हैं बट प्रेजेंटली वी आर यूजिंग ओनली टाइटल टैग. ठीक है, that will display the title of the web page in the browser title bar. Okay, so head tag, this defines the header of the document. It defines the header of document and contains the title tag. It defines the header of the document, information about the document like its title, its description, and it is doesn't have any effect on the appearance of web page. Okay, formatting पे कोई effect नहीं है ज़्यादा. Title tag. Title tag defines the title of web page. It defines the title of web page, and it is displayed. It is always used within the head tag. Title tag is always written within the head tag. And title is displayed in the web browser's title bar. Whatever we define as a title, that will be displayed in the title bar of the web browser. आपको मैंने लास्ट टाइम ओपन करके दिखाया था लैब में, टाइटल बार के टैब पे आ रहा था. ठीक है, आपने अटेंड की थी क्लास लास्ट वीक ना, उसमें टाइटल बार पे आपने देखा था. ओके, नेक्स्ट इज योर बॉडी टैग. Body tag will have all the content
and tags to format that content. All the content, text, pictures, tables and tags जो उस टेक्स्ट को, पिक्चर को, टेबल्स को फॉर्मेट करेंगे या इंसर्ट करेंगे. तो all the information is written within the body tag. चल रही है, क्लियर है? Any doubt till now? Yes, Lakshya. Nested tag means when we use one tag within another tag. That is a general term. They are nested tags. ठीक है, जब एक टैग को दूसरे टैग्स के अंदर यूज करते हैं, 3-4 टैग एक दूसरे के अंदर यूज कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड नेस्टेड टैग्स. उसका और कोई वो ऐसा नहीं है, अलग से कोई नेम नहीं है. कोई भी टैग एज ए नेस्टेड टैग यूज हो सकता है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेटा, बहुत ध्यान से. आपकी बुक में एक कैटेगरी दी हुई है. देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ HTML एलिमेंट्स that are used in body section, that is block level elements and text level elements. दिया हुआ है, बुक सबके पास है? नहीं है तो जो करेक्शन अब होगी वो कैसे होगी? आप भूल जाते हो, बाद में करेक्शन नहीं करते हो. कट कर दो ये दोनों कैटेगरीज. ये पैराग्राफ पूरा कट कर दो. ब्लॉक लेवल, टेक्स्ट लेवल सारा कट कर दो. उसकी जगह पे न्यू टॉपिक लिखो. जिनके पास नहीं है रफ कॉपी पे नोट डाउन करो. कट कर दो पैराग्राफ पूरा. जो 2 कैटेगरीज दी हुई है, टेक्स्ट लेवल, ब्लॉक लेवल टैग्स की, वो कट कर दो. वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस टाइप ऑफ कैटेगरी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स. दैट इज राइट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स. वो हमने पहले कर लिया, कंटेनर टैग्स एंड एम्प्टी टैग्स. ठीक है. देयर आर अ फ्यू स्ट्रक्चरल टैग्स. Structural tags that define the structure of the document. हाँ जी, define the structure of HTML document. कौन कौन से structural tags है? अभी हमने structure define करते वक्त जो tags use किए हैं, they are called structural tags. The tags which are used to define the structure, they are compulsory for the designing of the document. They are called structural tags. कौन कौन से structural tags हमने किए अभी? Okay. HTML, head, title and body. एक और होता है वैसे, comment. आप नेम लिख लो अभी. कमेंट. These are structural tags. These are structural tags. Okay. Second category, formatting tags. Second category, formatting tags. ठीक है. Formatting tags to format the content of web page. To format the content of web page. वेब पेज में जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको फॉर्मेट करने के लिए जो टैग्स यूज होते हैं, दे आर कॉल्ड फॉर्मेटिंग टैग्स. देयर आर सो मेनी टैग्स. आई एम गोइंग टू राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू. ठीक है. आपको वो सारे टैग्स का मीनिंग और कैसे यूज करना है, वी विल डू स्टेप बाय स्टेप. ओके. बी टैग to bold the text, I tag to italic the text, font tag to change the font of the text, paragraph tag to create the paragraphs. ठीक है. बाकी जितने टैग्स आप लर्न करोगे, आप उसमें से कोई भी एग्जांपल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो.
HTML tag at the beginning to indicate to the browser that this is a web page. Comment tag structural tag. These are used to जैसे आप rem statement use करते थे basic में, वैसे ही comment tag है. ठीक है, rem statement to give remarks, but उसका output पे कोई effect नहीं होता. Similarly, comment tag to give comments or remarks in a web page. When there is a lengthy web page, you want to divide the sections, आप अलग-अलग को comment देना चाहते हो, so that you can give. ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक नोट डाउन हो गया सबका? हाँ जी, ऑनलाइन क्लास है, क्लियर है बेटा? नोट डाउन हो गया है बेटा? राइट द अटेंड. हाँ जी, नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट बॉडी टैग. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बॉडी टैग. HTML टैग का कुछ नहीं है आपको नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बॉडी टैग. हमने वेब पेज जनरेट करना है. उस दिन हमने एक वेब पेज बनाया था सिंपल टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए. बनाया था लैब में, नहीं याद? ओके, आई विल डू इट अगेन. ओके, सिंपल एक वेब पेज जनरेट करना है मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए. जस्ट सिंपल टेक्स्ट. क्या लिखेंगे सबसे पहले? HTML head, write it in your rough copies. Title, my first web page. मैं information text दे रही हूँ, my first web page. That will be displayed on the title bar of web browser. You can write the tags in any case, uppercase or lowercase. ठीक है, in the same line or in the next line, it doesn't matter. मैं head tag यहाँ close करूँ, यहाँ close करूँ, doesn't matter. मैं title tag को यहाँ लिख दूँ पूरा, doesn't matter. सिर्फ order same होना चाहिए. Same line में आ रहा है या next line में आ रहा है, doesn't matter. But जैसे हम category बना के कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ज्यादा क्लियर हो जाता है. ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स की आइडेंटिफिकेशन जल्दी हो जाती है. किसी का कुछ क्लोजिंग टैग ऑर्डर में आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर पूरा पैराग्राफ बना के एक ही लाइन में लिख दोगे तो ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है, आपके लिए भी डीबग करना डिफिकल्ट हो जाता है. क्लियर? हेड टैग हो गया पूरा. फर्स्ट सेक्शन हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया. नाउ कम टू द बॉडी सेक्शन. बॉडी सेक्शन में आई एम गोइंग टू राइट द टेक्स्ट. This is my first web page. बनाया था मैंने, इसीलिए लिखो. It is fun to learn HTML. Now close the body tag and then close the HTML tag. Close the body tag, then close the HTML tag. Now I've typed all these things in Notepad. Save the file. कैसे? File menu, save option. ठीक है, save as dialog box will be there. You will give the name of the file. Suppose I am giving the name of the file as first. साथ में क्या करना है? .html. ये अपने आप खुद लिखना है. ये हमने एक्सटेंशन देनी ही देनी है. When I save the file in save as dialog box, ध्यान से सुन लो, प्रैक्टिकल में जाके आपने करना है बेटा. तब आप एक एक करके अलग अलग से भूल नहीं जाना. क्या करना है? सेव करते वक्त नेम देना है फाइल का, साथ में क्या लिखना है? .html. फाइल सेव हो गई. नाउ ओपन एनी वेब ब्राउजर, चाहे गूगल क्रोम खोलो चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलो. फाइल ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे? Ctrl+O. डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स विल बी देयर. ओपन डायलॉग बॉक्स में जाके select the file first.html. So it will display this text. These two lines will be displayed. ठीक है, but these two lines will be displayed. कैसे display होंगी? This is my first web page. It is fun to learn. एक ही लाइन में आएंगी. These two lines will be displayed in a single line with black color font.
छोटा साइज होएगा, बाय डिफॉल्ट इट इज 3 साइज, हम इसको बोलते हैं कि 3 साइज का फॉन्ट है, और एक ही लाइन में दोनों लाइंस डिस्प्ले होंगी, बिकॉज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन सेपरेट लाइन वी नीड अ टैग टू गिव अ कमांड टू द ब्राउजर कि यस यहां से बाकी का टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, तो हमें हर एक चीज के लिए अलग से कमांड देनी है बाय यूजिंग टैग्स। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। Now, if I want to change the background color of my web page, by default there is a white color. ठीक है, if I want to change the background color of my web page, I will use the attributes of body tag. What are attributes? What are attributes? Additional information about the tags. Many tags are having additional attributes. Many tags are having additional attributes. ये क्या है? बारह 10 थे, उनको बोलो 4 पीरियड्स लगातार मेरे लगे हैं, चारों लग गए। सुबह की ड्यूटी मैं देखे आई हूँ। पेन देना बेटा, एक 50 जाके फ्री आना है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? Attributes are additional information about the tags. Attributes are additional information about the tags. ठीक है, many tags are having attributes. बहुत सारे attributes होते हैं। Last week मैंने बताया था you can use all the attributes, you can use a few of them according to your choice. कि मुझे किस वक्त किस चीज की जरूरत है, किस तरह के एट्रीब्यूट की जरूरत है, मैं उतना यूज करूंगी। अब बॉडी टैग में ही कम से कम 10-12 एट्रीब्यूट्स होंगे, बट वी आर गोइंग टू लर्न ओनली 3 एंड वी कैन यूज एनी वन ऑफ देम और एनी 2 ऑफ देम व्हेनेवर वी रिक्वायर। ठीक है, देयर आर मेनी एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग, बट वी आर गोइंग टू लर्न ओनली 3 व्हिच आर गिवन इन योर बुक। ओके, and we can use any one, any 2 or any all the 3 as per your requirement. Attributes are additional information about the tags. Now each attribute is used within the angular bracket with the tag. Angular bracket finish करने से पहले, ये बंद करने से पहले यहाँ यूज होगा with a space. ठीक है, Now if I want to change, मेरे पास 3 attributes है body tag के जो हम अभी learn करने हैं। One is your BG color attribute. BG color attribute, background and text. Mind it, जो सबसे कॉमन मिस्टेक आप लोग करने वाले हो, बीजी कलर में यू विल गिव स्पेस, बट देयर इज नो स्पेस। 2 वर्ड्स नहीं है, सिंगल वर्ड है बीजी कलर। आप लोग करोगे क्या टाइपिंग करते वक्त, जब लैब में जाओगे आपने कहना मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। मैम चेंज नहीं हो रहा, क्यों नहीं चेंज हो रहा? बीजी कलर में आपने क्या लिखा है? आपने बीजी कलर ऐसे लिखना है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा ब्राउजर। आपको कैसे लिखना है? विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, बीजी कलर कैसे लिखना है? विदाउट एनी स्पेस। सिमिलरली बैकग्राउंड विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, बीजी कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर वेब पेज। राइट इट, बीजी कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर वेब पेज। To change background color of web page. ठीक है, अलग अलग है, बता रही हूँ। BG color attribute is used to change the background color of your web page. Background attribute is used to apply
some background image on web page. वेब पेज की बैकग्राउंड में मुझे कोई इमेज लगानी है. For that purpose, we will use the background attribute to apply some background image on a web page. हाँ, बिल्कुल लिखना पड़ेगा. क्या? Next is your Samnya and Shreya. They are just joining. लिख लो, इनका लेट ज्वाइन कर रहे हैं. Next is your text. To change the color of your text. Color of text to be displayed on web page. To change the color of text. जो text color हम text display करवा रहे हैं, information हम लिख रहे हैं, उसका color change करना है. कोई default color दे देना है कि हाँ ये मेरे पूरे web page में जो भी text मैं use करूंगी उसका ये color होगा. बट अगर आप इंडिविजुअली किसी वर्ड का, किसी लेटर का, किसी हेडिंग का चेंज करना चाहते हो तो वो आप बीच में बॉडी टैग में अलग से टैग्स यूज करके कर सकते हो. ठीक है. टेक्स्ट कलर में जो डिफाइन करेंगे दैट विल बी द बाय डिफॉल्ट कलर फॉर वेब पेज और फॉर द टेक्स्ट ऑफ द वेब पेज. दैट मीन्स अगर आपने कहीं पर कोई कलर या कोई और फॉर्मेटिंग टैग डिफाइन नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट जैसे ब्लैक कलर आ रहा है टेक्स्ट का तो वो कलर आएगा जो आप यहाँ डिफाइन करोगे. ठीक है. बट अगर आप अलग से कुछ टेक्स्ट का कलर देना चाहते हो कि मेरा हेडिंग का कलर ये हो, पैराग्राफ का कलर ये हो, नेक्स्ट लाइन का कलर ये हो, तो आप बॉडी टैग में वो अलग से टैग्स यूज करेंगे. ठीक है. अगर आप कोई कॉमन कलर देना चाहते हो पूरे वेब पेज के टेक्स्ट को तो आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट बॉडी टैग में यूज करोगे. ठीक है जी. Now three attributes we are going to use: BG color, background, text. Now see हमने यूज कैसे करना है. बॉडी टैग आई एम गोइंग टू यूज BG color इक्वल्स टू वैल्यू. कौन सा कलर चाहिए? ठीक है. बॉडी वन स्पेस नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू फॉर द एट्रीब्यूट ब्रैकेट क्लोज. क्या कर रहा हमने? टैग नेम वन स्पेस एट्रीब्यूट is equal to value for the attribute, then bracket close. After that whatever text I will write, ठीक है, I can write, then I can close the body tag. Now जब मैं इसको वेब ब्राउजर में ओपन करूंगी तो मेरा बैकग्राउंड कलर व्हाइट की जगह पे क्या आएगा? येलो. ठीक है. ऊपर वाले कंटेंट वही रहेगा, HTML हेड, टाइटल, हेड क्लोज, बॉडी साथ में HTML क्लोज, वो सारा वही रहेगा. ठीक है. हाँ जी. साम्या एंड श्रेया, बोथ ऑफ यू हैड जॉइन्ड द क्लास वेरी लेट. ऑलमोस्ट खत्म होने वाली क्लास है और आपने ज्वाइन किया है. यू मस्ट ज्वाइन द क्लास इन द बिगनिंग, ओनली देन यू विल बी मार्क्ड प्रेजेंट. हाँ जी. क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? सिमिलरली सपोज मैंने कलर BG कलर दे दिया येलो, मुझे टेक्स्ट का कलर देना है रेड. मेरा जो टेक्स्ट, जो मैं कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊं, जो मैं इंफॉर्मेशन यहाँ लिखूं, वो रेड कलर में आनी चाहिए. तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे, वन स्पेस देके टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट का कलर. ठीक है. तो अब क्या होगा? जो सिंपल टेक्स्ट हमने पहले लिखा था वो अब कैसे आएगा? बैकग्राउंड कलर येलो और जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड, रेड कलर. ठीक है. नोट डाउन हो गई? एग्जांपल नोट डाउन हो गई? हो गई. राइट अ क्वेश्चन. सिंगल लाइन कोड दे रही हूँ. अभी जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी आपको उसका एक ही लाइन में कोड लिख के बताना है. ठीक है. पूरा HTML से स्टार्ट नहीं करना है. ओके. Write the HTML code to change the background color
Write the HTML code. Online students, please write down in your rough copies all the work that we are doing in class and also the question. Write the HTML code to change the background color. To change the background color to blue. To change the background color to blue and text color to white. Text color to white. क्या लिखेंगे अब? Write the HTML code to change the background color of web page to blue and text color to white. Yes. Okay. Yes, Siddharth. Body type, BG color is equal to double quotes में blue. Then text color भी दिया is equal to blue हो गया. Then again one space text equal to white. ठीक है, this will be the answer for your this activity based question. ठीक है, body BG color equals to blue, text equals to white. ठीक है, write the HTML code. पूछना है कुछ आपने? यस पूछो. मैं वहीं पे आ रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. राइट द HTML कोड टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ योर डॉक्यूमेंट वेब पेज. टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ योर वेब पेज टू ऑरेंज. Write the HTML code to change the text color of your web page to orange. Body text equals to orange. That's it. It's not compulsory कि पहले BG color use होगा फिर ही text color use होगा. I told you ऑर्डर कोई भी हो सकता है. मैं टेक्स्ट इक्वल्स टू व्हाइट पहले लिखूं, बीजी कलर इक्वल्स टू ब्लू बाद में लिखूं, देन डजंट मैटर. ठीक है, ऑर्डर भी कोई भी हो सकता है. किसी भी ऑर्डर में एट्रीब्यूट्स यूज कर सकती हूँ. कोई कलर है उसका ऑर्डर कंपल्सरी नहीं है. ये भी कंपल्सरी नहीं है कि बीजी कलर यूज होगा तो ही टेक्स्ट यूज होगा. अकेला टेक्स्ट भी यूज हो सकता है, अकेला बीजी कलर भी यूज हो सकता है. राइट द HTML कोड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर to gray. Write the HTML code to change the background color to gray. BG color equals to gray. Bracket close. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बेटा? एनी डाउट? देयर आर टू मेथड्स टू डिफाइन द कलर. ये कलर जो मैंने दिया है, ये कलर देने के मेरे पास टू मेथड्स है. वन इज बाय गिविंग द कलर नेम, सेकंड इज बाय यूजिंग द हेक्साडेसिमल वैल्यूज. हमने नंबर सिस्टम किया था, उसमें एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था, right? Hexadecimal number system में I told you we can use 0 to 9 digits and A to F alphabets. ठीक है? Okay, we will continue with this.